हेलो एवरीवन। आज हम हमारा सीआरएम की एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़ का पार्ट 4 करेंगे। इससे पहले हमने जितने भी पार्ट करे हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके उन्हें देखिए। हम सीआरएम को क्वेश्चंस के थ्रू कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सो आज स्टार्ट करते हैं। WPA स्टैंड्स फॉर ए वाइड एरिया प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी वायरलेस एरिया प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी वायर्ड एरिया प्रोटोकॉल। सो इसका आंसर हमारा रहेगा वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। बेसिकली ये प्रोटोकॉल हमारा तब यूज़ आता है जब हम मोबाइल में इन्फो एक्सेस करते हैं। सो पढ़ते हैं। वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल WPA इज अ टेक्निकल स्टैंडर्ड फॉर एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन ओवर अ मोबाइल वायरलेस नेटवर्क. A WPA browser is a web browser for mobile devices such as mobile phone that use the protocol. Next, which of these represents the data about the data? Option A database, option B data, option C information या option D metadata. So इसका आंसर हमारा होगा metadata. metadata बेसिकली मैंने जब आपको सेगमेंटेशन पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि इन्फॉर्मेशन डिफरेंट सोर्सेज से कस्टमर का डेटा कलेक्ट होता है, फिर उसको कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेगमेंट करती है। डिफरेंट सेगमेंट्स में डिफरेंट कस्टमर्स का डेटा होता है, उनकी रिक्वायरमेंट, उनके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कौन सा डेटा कहाँ पड़ा है, उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, तो उस सब के बारे में एक जगह इन्फॉर्मेशन रखना, दैट इज़ मेटा डेटा. बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ इंडेक्सिंग. तो मेटा डेटा इज़ अ डेटा that provides information about other data. In other words, it is the data about the data. So metadata is defined as the data providing information about one or the more aspects of the data. It is used to summarize basic information about the data which can make tracking and working with a specific data easier. Next question. Increasing customer prefers choices tailored to their needs and is personalized in nature. Option A customer need, option B customer diversity, option C customer choice या option D none. So इसका आंसर हमारा रहेगा customer diversity. पढ़ते हैं इसके बारे में. Increasingly customer prefers choices tailored to their needs and is personalized in nature. Many of the mass marketing practices fail with customers who are diverse in their lifestyles, age, income, and ethnicity. The diversity will greatly increase the diversity in demand and expectations. Next question. Distinguished by aggressive tactics that attempts to reach the new customers, usually by means of unsolicited direct communication. Option A direct marketing, option B indirect marketing, option C integrated marketing या option D none. So हमारा इसका आंसर रहेगा डायरेक्ट मार्केटिंग. सो पढ़ते हैं इसके बारे में. Direct marketing is just what it sounds like. Directly reaching a market, customer and potential customers, or on a personal such as phone calls, private mailing basis or mass media basis. Direct marketing is often distinguished by aggressive tactics that attempts to reach the new customers, usually by means of unsolicited direct communication. But it can also reach out to the existing or the past customers. A key factor in direct marketing is a call to action. Important question बन सकता है कि what is the key factor in direct marketing? That is call to action. Next question. The framework of which of these marketing does not contain a strategic long-term perspective? Option A transactional marketing, option B relational marketing, option C both A या option D none. जब मैंने आपको CRM की हिस्ट्री पढ़ाई थी तो उसमें मैंने आपको ट्रांजैक्शनल और रिलेशनल मार्केटिंग समझाया था कि क्या होता है. ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग बेसिकली
वन टाइम ट्रांजैक्शन के ऊपर बेस्ड होता है, ये शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव पे होता है। रिलेशनल मार्केटिंग मतलब कंपनी और कस्टमर के बीच में रिलेशनल बिल्ड करेंगे एंड वो हम लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से देखते हैं ताकि इससे बिजनेस इंक्रीज हो। तो आंसर इसका रहेगा हमारा रिलेशनल मार्केटिंग। Transactional approach is on individual transaction and does not concerns continuous relation with customers. The framework of transactional marketing does not contain a strategic long-term perspective. It centers on tentative adjustment process as regards performing marketing functions. Customers are viewed as outsider to the business. Next question. What is the full form of SAP? ये सैप, ओरेकल, जोलो ये सारे CRM के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। ये सारे मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू कवर करवा दूंगी। इनकी बेसिक के कब स्टैब्लिश हुए, कौन सी जर्मन बेस्ड है, ब्रिटिश बेस्ड है, कौन सी कंपनी है, इनके हेडक्वार्टर्स मैं एक शॉर्ट वीडियो में ले आऊँगी। सो अभी पढ़ते हैं व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सैप। ए, सिस्टम्स एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स। बी, systems, applications and processing. C, both A and B, या D, none. So the answer will be systems, applications and products. SAP is a German multinational software corporation that develops enterprises software to manage businesses, operations and customer relations. The company is specially known for its ERP software. ERP software means enterprises resource planning software. SAP architecture is robust, secure and customized to another level. SAP is the ERP systems that aims to integrate all the different modules in the company. Next question. Which among these is affected by the macro business environment? Option A, customer profile. Option B, customer data. Option C, customer analysis. या ऑप्शन डी, नन. सो इसका आंसर हमारा रहेगा कस्टमर प्रोफाइल। ये मैंने आपको जब कस्टमर प्रोफाइल बताया था तो उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये क्या होता है मैक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट। बेसिकली इसमें आप शॉर्ट डीलिंग करते हैं, मतलब शॉर्ट जैसे उनके एज ग्रुप पे उनकी मतलब छोटे छोटे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो वो मैक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट में कस्टमर प्रोफाइल में क्या आएगा, उसका नाम आएगा, उसकी एज, उसकी इनकम, या किस जोग्राफिकल प्रोफाइल में वो रह रहा है, जोग्राफिकल लोकेशन में वो रह रहा है, और उसका जेंडर क्या है, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, क्या किस चीज़ की उसे रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो वो पूरा कस्टमर प्रोफाइल के अंदर आता है, तो वो मैक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट से अफेक्टेड होता है। द गैप बिटवीन द डिजायर्ड एंड द एडिक्वेट सर्विस इज कॉल्ड। ऑप्शन ए, टॉलरेंस. ऑप्शन बी, adequate tolerance. ऑप्शन सी, zone of tolerance. ऑप्शन डी, none. ये क्या होता है? इसका आंसर तो हमारा रहेगा जोन ऑफ टॉलरेंस। इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि होता क्या है। बेसिकली लेट्स सपोज अगर आपने किसी कम्युनिकेशन टेली कम्युनिकेशन की एक सिम खरीदी बात करने के लिए या जिस भी पर्पज़ के लिए, तो अगर आप उसमें बात कर रहे हैं और कॉल ड्रॉप हो गया, यू विल एडजस्ट फॉर वन टाइम। दूसरी बार हो गया, आप लोग एडजस्ट कर लेंगे। बट यही चीज़ अगर फ्रीक्वेंट होती रही तो आप उसे एडजस्ट नहीं करेंगे ना, आप कंपनी स्विच कर लेंगे, मतलब कंपनी की तरफ से कस्टमर डिफेक्शन हो जाएगा। सो एक छोटी सी नैरो विंडो होती है कि जहाँ तक एक कस्टमर सर्विसेज की जो डिफ़र हो रही हैं सर्विसेज, मतलब सर्विसेज में बैकलॉग्स आ रहे हैं, उनको एडजस्ट कर सकता है। तो वो गैप, द डिज़ायर्ड एंड द एडिक्वेट सर्विस के बीच का जो गैप है उसे जोन ऑफ टॉलरेंस बोलते हैं। अगर वो एक मिनिमम लेवल के नीचे चला जाए तो कस्टमर डिफेक्शन हो जाता है, तो मतलब कस्टमर स्विच कर लेता है। सो द गैप बिटवीन द डिजायर्ड and the adequate service has been called the zone of tolerance. If services drop below the adequate service, the minimum level considered acceptable, customer will be frustrated and their satisfaction with the company will be undetermined. So the zone of tolerance might be considered as the range or the window in which customers do not particularly notice the services performance. ये होती है हमारी
जोन ऑफ टॉलरेंस। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, एंड नेक्स्ट या जब भी वीडियोस में मैं SAP हो गया, ओरेकल हो गया, इन कंपनीज़ का इस्टेब्लिशमेंट हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ हैं, इधर क्वेश्चंस के थ्रू करवा दूंगी या वीडियो में एक लास्ट छोटा सा टॉपिक लेके हम उसे भी कवर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।